So we have seen so far how the solids are arranged in FCC, BCC and simple cubic and what is the packing efficiency. Now we will see the close packing in solid, and in this we can see the packaging can be done in three different ways. That is, the particle can be arranged either in 1 dimension, 2 dimension or in 3 dimension. So first we will see how the close packing take place in 1 dimension. Now atoms are considered to be as hard sphere, so we will see the particle arrangement, that is a spherical arrangement of particles in 1 dimensional close packing. So there is only one way to arrange them, either in row touching each other or in column. या तो ऐसे आप अरेंज कर लो, एक एटम से दूसरे एटम को डायरेक्टली ऐसे टच कर रहा है या फिर कॉलम में टच कर रहा है. So you can arrange them only in one possible manner, and this is the close packing that can be done in 1 dimension. Now when you do this, if you can see, if I mark an atom, a particular atom, this is the particular atom, this atom is in direct contact with atom 1 and 2. So each atom is in direct contact with two spheres, and that is why the coordination number is 2. So in a single dimension or in 1 dimension, the coordination number is 2. In this arrangement, each sphere is in contact with two of its neighbor, and the nearest neighbor of a particle is called coordination number. Okay, and the coordination number in 1 dimension is 2. Now next, 2 dimensional packing. Now in 2 dimensional packing, there are two ways to do the packing in 2D. When the particle placed in adjacent row show horizontal as well as vertical alignment and form square, this type of packing is called square close packing. तो square close packing है एक तरह का अरेंजमेंट जहाँ पे एक के नीचे एक हम रोज को रखते जा रहे हैं. अगर पहली रो ए टाइप की है तो एग्जैक्टली उसके नीचे ऐसी ही रो उसी के बिल्कुल नीचे से शुरू हो रही है, तो पूरे ए के नीचे ए रोज आ रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड a square close packing arrangement. This is the arrangement over here. You can see that here each row, this is a row, this is a row, a row, a row, एक के नीचे एक एक है. So एक atom directly कितने atom के contact में आ रहे हैं? It is an atom 1, 2, 3, 4, and the shape that you get is the square, so it's called as square close packing arrangement. So this is the packing arrangement in 2D. One of the possible arrangement is हर एक रो एक के नीचे एक आ रही है, तो हर एक एटम को चार नियरेस्ट स्क्वायर टच कर रहे हैं, चार नियरेस्ट एटम टच कर रहे हैं, so it's called a square close packing in 2D. Now when the particles in every next row are placed in the depression between the first row, डिप्रेशन में रखा गया है, दूसरा हर एक रो के नीचे दूसरी रो नहीं है, वो उसके गैप से रखी गई है. द पार्टिकल इन द थर्ड रो विल बी वर्टिकली अलाइंड विद द फर्स्ट वन, एंड दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. फॉर एग्जाम्पल, मेरी पहली रो है, ऐसे पार्टिकल्स है, ठीक है. अब दूसरी रो यहाँ से शुरू हो रही है, गैप जो दिख रहा है वहाँ से शुरू हो रही है, तो ये रो बी है, ये रो ए है. तो बी के बाद ए आया और ए के बाद वापस से बी आया, तो हर एक एटम ने, देखो कितने एटम, इफ आई मार्क दिस एटम, ये एटम इसको भी कनेक्ट कर रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो एक हेक्सागोनल शेप बन रही है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है? 6. सो दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जहाँ पे हर एक रो, फर्स्ट रो के डिप्रेशन, ये जो गैप आती है इसको क्या कहते हैं? डिप्रेशन. तो जो सेकेंड रो है वो डिप्रेशन से शुरू हो रही है, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, सेकेंड और फोर्थ रो आइडेंटिकल होंगी, एंड सच काइंड ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. When the particle in every next row are placed in depression between the particle of first row, the particle in third row will be vertically aligned with those in the first row. This type of packaging gives a hexagonal pattern and is called hexagonal close packing. किस तरह की पैकिंग है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसको ए बी पैकिंग भी कहते हैं. सो दिस इज, और जो खाली स्पेस दिखती है यहाँ देखो, ये जो खाली स्पेस है इन्हें क्या कहते हैं? वॉइड्स.
और ये जो स्पेस है ये भी वॉइड। अब आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे खाली स्पेस ज़्यादा है, वॉइड स्पेस ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, मोर यहाँ पर है और यहाँ पे लेस है। तो ये एफिशिएंट पैकिंग होगा 2D में एज कम्पेयर टू स्क्वायर क्लोज। नाउ द थर्ड टाइप इज इन 3 डायमेंशनल पैकिंग। अब जो 3 डायमेंशनल पैकिंग है वो 2D पैकिंग से ही हम निकाल रहे हैं। पहला हम निकाल रहे हैं 2D स्क्वायर से। While placing the second square close pack layer above the first, we follow the same rule. हर एक के ऊपर एक लेयर रख रहे हैं, तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आप रखते जाओगे वो 3D में क्यूब बन जाएगा। तो हर एक लेयर एक के ऊपर एक आ रही है, हर एक रो के ऊपर एग्जैक्टली वैसा ही रो है, इसलिए इसको AA पैकिंग कहते हैं, या सिंपल क्यूब पैकिंग कहते हैं, या प्रिमिटिव क्यूबिक पैकिंग कहते हैं। सो इट्स अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D, सिंपल क्यूबिक क्लोज। नाउ अगर 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर है, एक के ऊपर एक हम रख रहे हैं, ये रहा, एक के ऊपर हमने रखा तो क्या बना, यू गेट अ क्यूब। सो दिस इज अ क्यूब दैट यू गेट एंड दिस इज अ सिंपल क्यूब। नाउ प्लेस, अब क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हम शुरू करते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो 2D में था वो इस तरह का अरेंजमेंट था, दिस वाज द अरेंजमेंट। ऐसा अरेंजमेंट करने से ये जो वॉइड्स, ये खाली स्पेस जो आ रहे हैं, इनको हमने मार्क कर दिया C ऊपर वाले और नीचे वाले को D। अब एक लेयर रखते हैं, वो इस तरह से रखते हैं कि वो B को कवर करे, B को कवर किया तो ये जो रो आ रही है पर्पल कलर की वो वाइट नीचे वाली रो के ऊपर नहीं आ रही। तो नीचे वाले रोज में जितने भी पार्टिकल्स है वो सब A है, और यहाँ पर जो ऊपर रो रखी गई है उसमें जितने भी पार्टिकल है वो B है, ठीक है। अब हम तीसरी रो रखते हैं, अगर तीसरी रो बिल्कुल ऊपर वाले नीचे वाले लेयर के इक्वल आ जाती है तो तीसरी लेयर A की इक्वल आ गई, तो AB पैकिंग हो गई। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट 3 डायमेंशनल पैकिंग, हम यहाँ पर 2 तरह के वॉइड पढ़ेंगे। Wherever a sphere of the second layer is placed above the void of the first layer, a tetrahedral void is formed. These voids are called tetrahedral void because a tetrahedra is formed when the center of these 4 spheres are joined. तो जब भी आप टेट्राहेड्रा वॉइड यानी कि अगर एक खाली स्पेस 4 एटम से बनती है और वो भी इस तरह से कि वो एक टेट्राहेड्रल बनाते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब कौन से वॉइड को आप कवर करना चाहते हो, तो सबसे पहले जो ट्राइंगुलर वॉइड्स थे इनको आप कवर करने के लिए एक लेयर लगाते हो, उससे 2 तरह की वॉइड जनरेट होती है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अगर एक वॉइड 4 एटम से जनरेट हुई है तो वो टेट्राहेड्रल है, और अगर एक वॉइड 6 एटम से जनरेट हो रही है देन इट्स एन ऑक्टाहेड्रल। अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हो यू गेट एग्जैक्टली द फर्स्ट लेयर एंड दैट्स कॉल्ड AB क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ T और O लिखा हुआ है, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड, और O का मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो अगर हम ये वाला T लेयर देखें तो ये एटम 1, ये 2 और ये 3, और इसके नीचे एक एटम है, तो ये खाली स्पेस 4 एटम से बनी है, दैट इज वाई इट्स टेट्राहेड्रल वॉइड। और अगर ये O ले तो ये कितने से बना, ब्राइट रेड कलर की ये 3 और नीचे 1 2 3। सो दिस इज हाउ यू गेट एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने से बनते हैं, 6 एटम से बनते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड वो खाली स्पेस है जो 4 एटम से बनते हैं। अब अगर मेरे पास 2 लेयर है, पहली लेयर को तो मैंने मान रखा है ये जो लाइट कलर से A, और दूसरी लेयर को मैंने मान रखा है जो ब्राइट कलर से वो B। अब मैं तीसरी लेयर रख रही हूँ, इस तरह से हम तीसरी लेयर रखते हैं कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा है। अगर 3 डायमेंशनल में बात करें तो मैं स्टैक कर रही हूँ, एक के ऊपर एक लेयर रख रही हूँ। तो अब जो मैंने रो रखी है वो इस तरह से रखी है कि वो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो वो लेयर बिल्कुल नीचे वाले जो A के इक्वल आ जाती है। ऐसी पैकिंग को AB क्लोज पैकिंग इन 3D कहते हैं। If you cover the tetrahedral voids, then you get exactly the same layer as that of the first one, and such packing is called AB close packing. But
इफ़ यू कवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हो तो वो ना ए की इक्वल आ रही है ना वो बी के इक्वल आ रही है, वो एक नई लेयर तैयार हो जाती है और ऐसी लेयर को सी लेयर कहते हैं। और जो पैकिंग बन रहा है वो है ए बी सी क्लोज पैकिंग। सो जब हम हेक्सागोनल पैकिंग 2D से 3D पैकिंग बनाते हैं तो दो तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं, ए बी और ए बी सी क्लोज पैकिंग। ए बी पैकिंग में टेट्राहेड्रल वॉइड को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड कवर होती है तो ए बी क्लोज पैकिंग होती है एंड दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D ए बी। ठीक है, तो ये ए लेयर है, ये बी लेयर है, ए लेयर वापस से आ गई, बी लेयर आ गई, तो दैट इज ए बी क्लोज पैकिंग। कब हुआ, जब आपने टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया। जब आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड रखते हो तो एक तीसरी लेयर बन जाती है, ना वो फर्स्ट के सिमिलर है ना सेकेंड के सिमिलर है, वो एक तीसरी लेयर है सी। अब जो चौथी लेयर आती है वो वापस से फर्स्ट लेयर के इक्वल हो जाती है और इसको ए बी सी क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर क्यूबिक पैकिंग भी कहते हैं। तो अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हो ए बी पैकिंग, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D बनता है। अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हो तो एक नई लेयर बन जाती है, तीसरी लेयर ना फर्स्ट के इक्वल है ना सेकेंड के, वो नई लेयर है, और चौथी लेयर फर्स्ट के इक्वल आ जाती है, दैट इज कॉल्ड ए बी सी क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो 3 डायमेंशन में दो तरह से अरेंजमेंट पॉसिबल है अगर आप हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से चलते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर में हम जब एक रो रखते हैं और उसके ऊपर एक और लेयर स्टैक कर देते हैं तो दो तरह के वॉइड बनते हैं। तो वॉइड यानी कि खाली स्पेस, ये जो खाली स्पेस है दो तरह के हो सकते हैं। अगर एक खाली स्पेस 6 एटम से बना है, 1 2 3 एंड देन 1 2 3, तो 3 एटम, तो यानी कि एक स्टार और एक स्टार से ये जो खाली स्पेस बनती है दैट इज़ योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम से बनते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं 4 एटम से। 4 एटम से जो वॉइड बनेगा दैट वुड बी योर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो यू हैव 2 टाइप ऑफ वॉइड। अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हो तो यू गेट ए बी क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को करते हो कवर, यू गेट ए बी सी और क्यूबिक क्लोज पैकिंग और FCC क्लोज पैकिंग। So packing can be done in 3 different ways, 1D, 2D and 3D.